تمام مومنین کی خدمت میں گزارش ہے، دست ادب جوڑ کر گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مختصر سے وقت کی ایک چھوٹی سی تقریر ہمارے درمیان موجود ہے۔ علی جناب مولانا سید نور الحسن رضوی صاحب قبلہ، آپ حضرات دعوات بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصد شبیر کا یوں بول بالا ہو گیا، چھٹ گئیں تاریکیاں ہر سو اجالا ہو گیا۔ کربلا سے جب چلی لے کر ہوا خیموں کی راکھ، شام والوں کا لباس عید کالا ہو گیا۔ حضرات، بہترین نوحہ جیسے اشعار تھے، جیسے مصرے تھے، اسی انداز سے اس کی ادائیگی بھی کی گئی ہے۔ اور نوحے کے لیے یہی سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ صرف مصرے نوحے کے نہ پڑھے جائیں، بلکہ اپنا پورا وجود نوحہ خواں کا وہ نوحہ کرتا نظر آئے۔ اور یہ واقعاً یہ چیز نظر آ رہی تھی، اور بہت ہی ڈوب کر کے، جتنا ڈوب کے یہ نوحہ لکھا تھا ڈاکٹر اظہر قائمی نے، اسی طرح سے ان نوجوانوں نے اس نوحے کو ادا بھی کیا ہے۔ میں کچھ بیان کرنا چاہتا تھا، مگر وقت اور حالات کی نزاکت یہی کہتی ہے کہ بہت زیادہ کچھ نہ بیان کیا جائے۔ بس اسی نوحے کے پس منظر میں آپ کے جذبات کو تھوڑا سا کریدنا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ ثانیہ زہرا کی زبان سے نوحہ سماعت فرما رہے تھے۔ ثانیہ زہرا کی بے پردگی یہ کتنا بڑا المیہ ہے اور کتنی بڑی مظلومیت ہے ثانیہ زہرا کے لیے، کہ جس کے پردے کا عالم یہ ہے کہ تاریخ کے اگر تھوڑا سا آپ پیچھے جائیں تو سن 11 ہجری ہے، 5 یا 6 برس کی عمر ہے۔ ماں کا تابوت رات کی تاریکی میں بیت الشرف سے نکل رہا ہے۔ مولا کائنات امام حسن و حسین، سلمان جیسے 2-3 صحابی، سناٹے میں جناب زہرا کا تابوت نکل رہا ہے، اور اسی تابوت کے پیچھے پیچھے چادر میں لپٹی ہوئی 5 برس کی زینب اماں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہی ہو؟ سنیں گے آپ، مولا کائنات نے شہزادی کا تابوت چھوڑ دیا، واپس زینب کے قریب آئے، سینے سے لگایا، اے زینب، تیرے بابا کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تمہارے قدم گھر سے باہر آ جائے۔ مولا، اس کم سنی میں چادر میں لپٹے ہونے کے باوجود آپ کو گوارا نہیں کہ زینب گھر سے باہر آ جائے، مگر مولا 12 محرم کو آپ پر کیا گزرے گی جب یہی زینب بازار کوفہ میں بے مقنع چادر لائی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے بجز غم محمد و آل محمد کے۔ بڑا اہتمام ہے خود مولا کائنات کی نظروں میں بھی اور بنی ہاشم کی نگاہوں میں بھی ثانیہ زہرا کا بڑا شرف ہے، بڑی باعظمت خاتون ہے۔ پردے کا کتنا اہتمام ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ 28 رجب کو جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے کی تیاری کر رہا تھا تو مدینے میں نبی کے ایک صحابی تھے۔ ذرا سا آپ تصور کر لیں آپ کے پردے کی کیفیت کیا تھی، آپ کے پردے کی عظمت کیا تھی، آپ کے پردے کا عالم کیا تھا۔ پھر آپ کو صحیح رونا ثانیہ زہرا کی بے پردگی پر آئے گا۔ ایک نبی کے صحابی ہیں جو گرا گوش ہیں، کانوں سے سنائی نہیں دیتا ہے، مگر چونکہ جب بنی ہاشم مدینہ چھوڑنے لگے تو بنی ہاشم کے گھروں سے رونے کی صدائیں بلند ہونے لگی، اور ایسی آوازیں گریا کہ یہ گراگوش صحابی اپنی زوجہ سے کہتے ہیں میں تو بہت بد نصیب ٹھہرا، مجھے تو بادلوں کے کڑکنے کی صدا نہیں سنائی دیتی۔ ارے کون بی بی رو رہی ہے کہ جس کی آواز گریا میرے کانوں میں آ رہی ہے؟ زوجہ نے کہا تمہیں خبر نہیں ہے، آج بنی ہاشم
आज नवासे रसूल मदीने से सफ़र कर रहा है। मुलाकात की गरज से नबी के ये सहाबी मोहल्ले बनी हाशिम की तरफ चल दिए। जैसे उस गली में दाखिल हुए, जो गली मोहल्ले बनी हाशिम की तरफ आती थी, चौथे इमाम की नज़र पड़ी कि कोई ज़ईफ़ असा के सहारे से चला आ रहा है। एक मरतबा आवाज़ देते, आने वाले वहीं ठहर जा, क्या तूने मेरे चचा का ऐलान नहीं सुना है? मेरे चचा ने ऐलान किया है कि आज परिंदे भी अपने आशियानों से नहीं निकलेंगे, इसलिए कि आज हमारी फूफी का कदम घर से बाहर आने वाला है। रावी खुद कहता है, मैं मदीने में मौजूद था, मैंने देखा कि एक बीबी निकलती थी, उसका बाजू एक जवान के हाथों में होता था, फिर दूसरी बीबी निकलती थी, फिर किसी जवान के हाथ में उसका बाजू होता था। मगर देखते देखते मैंने ये मंजर भी देखा कि ऐसी बीबी निकली है कि जिनके साथ 18 जवानाने बनी हाशिम अपने हल्के में लिए हुए हैं। मैंने पूछा, अरे ये कौन बीबी है? मुझे बताया गया ये अली की बेटी ज़ैनब। इस शान से सानिया ज़हरा मदीने से निकल रही हैं। सुने अज़ीज़ान गिरामी, काफिला बिल्कुल तैयार हो गया, आमादा सफर है। सानिया ज़हरा ने एक मरतबा इमाम हुसैन और मौला अब्बास को बुलाया और बुला के कहती हैं, भाइयों सफर बहुत तूलानी है। कहा बहन सफर तूलानी है? कहा मैं तुम दोनों भाइयों से एक वादा करना चाहती हूँ। कहो बहन क्या वादा लेना चाहती हो? कहा भैया एक वादा कर लो तुम दोनों भाई कि सफर में मुझसे बहुत देर तक जुदा नहीं रहोगे। मैं तुम दोनों भाइयों से बहुत देर तक जुदा नहीं रहना चाहती। जिसके अब्बास और हुसैन जैसे भाई हो, जिसकी ज़ैनब जैसी बहन हो, आम भाई आम बहनों की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। जिसका इमाम वक्त भाई हो, जिसका अब्बास जैसा भाई हो, जिसकी सानिया ज़हरा जैसी बहन हो, वो अपनी भाई बहन की ख्वाहिश को क्यों नहीं पूरा करेगा? कहा बहन जो ख्वाहिश है वो पूरी होगी। काफिला मदीने से चल दिया। काफिले ने 4 मंजिलें तय कर ली। जब ये काफिला चौथी मंजिल पर रुका तो सानिया ज़हरा ने एक मरतबा इमाम हुसैन को, आप मेरी तरफ मुतवज्जह हैं, आपकी आवाज आप तक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। सानिया ज़हरा ने अपने भाई को बुलाया और बुला के कहती, भैया मदीने से चलने के वक्त हमने कोई वादा लिया था। कहा बहन क्या कहा था? कहा हमने यही कहा था कि हम तुम दोनों भाइयों से बहुत देर तक जुदा नहीं रहना चाहते। कहा ज़ैनब क्या हुआ? कहा भैया तुम्हें तो देख रही हूं मगर अब्बास नजर नहीं आते। सुने इमाम हुसैन का जवाब सुने। हमारी माए बहने अपने दिल पर हाथ रख के सुने। अजब फिक्रा इमाम हुसैन कहते, हाँ वाकईन हर भाई के दिल में बहन के लिए यही शान होनी चाहिए, बहन की यही अजमत होनी चाहिए, बहन का यही मर्तबा होना चाहिए जो अब्बास जैसे भाई की निगाहों में है। इमाम हुसैन कहते, ज़ैनब तुम ये पूछ रही हो कि अब्बास नजर नहीं आते? सुनोगी, जब से काफिला मदीने से चला है ना, अब्बास ने अपना ये मामूल बना लिया है, कभी काफिले आगे चले जाते हैं, कभी काफिले के पीछे चले जाते हैं, कभी काफिले के दाएं चले जाते हैं, कभी काफिले के बाएं चले जाते हैं। भैया अब्बास ये अमल क्यों अंजाम देते हैं? ए ज़ैनब, अब्बास आगे बढ़ के कहते, आने वालों रास्ता छोड़कर हट जाओ, इस रास्ते से हमारी शहजादी गुजरने वाली है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। हाँ अजीजों, जब ये शान सानिया ज़हरा ने अपने पर्दे की और अपने सफर की देखी, कहा भैया एक बार जरा भैया को बुला तो दो। अब्बास बुला के लाए गए। अब्बास बुला के लाए गए। अब्बास आए, सर झुका के खड़े हुए हैं। सानिया ज़हरा कहती है, अब्बास जरा सर तो उठाओ। सर को झुकाए झुकाए कहते, नहीं शहजादी अम्मा ने मना किया है।
अम्मा ने यही कहा था कि जब भी शहजादियों की बारगाह में जाना तो सर को झुकाए रखना। कहा अब्बास बड़ा अच्छा एहतमाम तुमने किया है, बड़ा अच्छा इंतजाम में तुमने किया है, मैं तुम पर कुर्बान हो जाऊं, मगर ए अब्बास जरा मेरे करीब तो आ जाओ। अब्बास करीब आए। एक मर्तबा सानिया ज़हरा ने अब्बास के पुष्ट पर हाथों को रखा और रख के कहती है, ए भाई अब्बास एक वादा कर लो कि जिस शान से लेके चल रहे हो, जिस शान से लेके चल रहे हो इसी शान से लेकर वापस आओगे। अब्बास कुछ बोलना चाहते थे, इमाम हुसैन ने दूसरे शाने पे हाथ रखा। ए अब्बास अरे ये वादा न करना, इसलिए कि तुम्हारे बाजू फरात के किनारे कट जाएंगे। ए अब्बास ज़ैनब तन्हा वापस आएगी। इतने सारे मनाजिर आपने मुलाजा कर लिए, आपने महसूस कर लिया कि सानिया ज़हरा के पर्दे का क्या एहतमाम था, क्या अज़मत थी, क्या मकाम और क्या मर्तबा था। मगर जरा तसव्वुर कीजिए जब 11 मुहर्रम आई होगी, जब 11 मुहर्रम आई होगी और सानिया ज़हरा को असीर किया गया होगा तो क्या शेर जैसा भाई अब्बास याद ना आया होगा। फरात का रुख किया, आवाज दी भैया अब्बास, अरे बड़ी शान से लाए थे, अब ज़ैनब वापस जा रही है, क्या ज़ैनब को सवार न करोगे। बस अदादारों में ख़त्म कर देता अपनी गुफ्तगू, मगर चूँकि जुलूस अमारी के उन्वान से ये जुलूस मुनक़िद है और उसमें आप शिरकत फरमा रहे हैं, बस एक रवायत कि 2-3 फ़िक्रे और समात फरमा लें इंशाअल्लाह। अगर आपने तसव्वुर किया तो मसाब होंगे। काफ़िला रिहा हो गया, रिहाई पाने के बाद करबला आ गया और शायद कि आज ही की वो तारीख़ है कि जिस तारीख़ को करबला से ये काफ़िला मदीने रवाना हो रहा है। 20, 21, 22 सिर्फ तीसरा दिन था, मगर सैयद सज्जाद ने ये महसूस किया कि अगर बीबियां और करबला में रुकी रह गई तो ऐसा ना हो कि कुछ बीबियां कहीं हमारा साथ न छोड़ दें, ये रोते रोते मर न जाएं। इसलिए इसी पस मंजर में मैं ये गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ कि शायद आज ही की तारीख है कि जिस तारीख को ये काफिला करबला से मदीने के लिए रवाना हो रहा है। काफिला मदीने पहुँच गया। चौथे इमाम ने बशीर इब्न जज़लम को बुलाया और बुला के कहते हैं, बशीर तेरा बाप शायर था, क्या तू भी शायरी कर लेता है? कहा मौला मैं भी अशार कह लेता हूँ। इमाम सज्जाद ने स्याह परचम दिया, जा और मदीने में हमारे आने की खबर कर दे। बशीर ने स्याह परचम लिया, मदीने की गलियों में या अहला यसरब ला मकाम लकुम, ए मदीने वालों अब ये मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, इसलिए कि हुसैन करबला में कत्ल कर दिए गए। उनके वर्षा वहां से कैद बंद की सौबतें बर्दाश्त करने के बाद वापस आए हैं। ये सुनाने सुनाता हुआ बशीर मदीने की गलियों से गुजर रहा था। बशीर कहता, जब मैं मोहल्ले बनी हाशिम में पहुंचा तो मैंने वहां भी यही सुनानी सुनाई, और ये सुनानी सुना के मैं आगे बढ़ा। मैंने देखा कि बनी हाशिम के एक घर से छोटा सा बच्चा निकला जो तेजी के साथ मेरे पीछे पीछे आने लगा। बशीर कहता, जब मैं ये समझा कि ये बच्चा मेरे पास आ रहा तो मैं रुक गया और वो बच्चा मेरे करीब आया, कभी मुझे देखता है, कभी मेरे हाथों में जो परचम है उसे देखता है, कभी मुझे देखता है, कभी मेरे हाथों में जो परचम उसे देखता है। बशीर कहता, मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा क्या मालूम करना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो? बशीर कहता, वो बच्चा तड़प के कहता है, शेख मुझे कुछ और नहीं पूछना है, बस इतना बता दे ये परचम तुझे कहां से मिल गया, ये परचम तुझे कहां से मिल गया? बशीर कहता, ये सवाल क्यों कर रहे हो? कहा, ये सवाल इसलिए कर रहा हूं, जब काफिला यहां से गया था तो इस परचम को हमारे आका ने हमारे बाबा के हाथों में दिया था। बशीर कहता, मैं समझ गया ये फर्जंदे अब्बास है, सीने से लगाया। ए बेटा, तेरा बाबा करबला में फरात के किनारे मारा गया,
اے بیٹا تیرا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا، یہ علم ہمیں چوتھے امام نے دیا ہے تاکہ اسے اجڑے ہوئے قافلے کی سنانی مدینے والوں کو سنا سکوں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا قلب ینقلبون ماتم حسین۔